मीडिया का आज कीनोट सेशन का द्वितीय सत्र है और इस सत्र में आज हमारे साथ 4 कीनोट स्पीकर्स हैं। It is pleasure to introduce Dr. S. Chitra. Dr. S. Chitra is an assistant professor in English at Yonphula Centenary College, Royal University of Bhutan. Currently, she teaches master's program in English, supervises the research scholars, and serves as program leader for academics and research. She holds 2 decades of tertiary teaching experience. Her service record includes teaching expertise in areas of English literature and language, along with curriculum design and course development. She worked as head of the Department of Language in colleges affiliated to University of Madras and a senior lecturer in the Department of Humanities, Anna University, Chennai, India. Her areas of interest include cultural studies, contemporary literature, post-colonial studies, European literature, women's/gender studies with research project in the field of Bhutanese folklore, action research on students' English language proficiency, faculty attrition and impact assessment, survey of teaching, learning during COVID-19 crisis. She has published over 30 plus research articles in book, chapters, journals, conferences, volumes, presented papers in 50 plus international and national conferences, had been the overseas examiner for doctoral thesis, member in board of studies for syllabus validation, and in the editorial board of international journals. Her active engagement in international conference, including virtual platform in the capacity of keynote speaker in the inaugural and plenary sessions, and as resource person for online academic workshops and webinars organized by reputed universities in India. I welcome Dr. S. Chitra on behalf of organizers. Now I call upon Dr. S. Chitra, kindly deliver your keynote speech. Dr. S. Chitra. Thank you, Professor, for your warm and kind introduction. It's my pleasure to deliver my second keynote speech in this international conference on literature, society, and the global media. I can right away begin the talk without any more deliberation. Thank you for having me. And today, the topic for my talk, which I have chosen, is speculations on post-pandemic writings. To begin with, how best to describe the ongoing pandemic crisis, which has become a defining moment of this millennium? To say it in Shakespearean terms, the time is out of joint. It could be nothing more or nothing less than that, because pandemic crisis has become a life-altering event that has created a paradigm shift in the way we think about life itself. If this had been the case with common mass, could you hear me? Sure. Yes, Yeah. ma'am. If this had been the case with the common mass, then the writers, thinkers, literary and cultural theorists, how do they perceive this cataclysmic event that has forced mankind to embrace a new normal? Let's probe on this through the writings and through the literary records. Arundhati Roy, in her recent essay titled "The Pandemic is a Portal," describes how the term "gone viral" has transmogrified into a traumatic virulence, creating a culture of pandemonium, of chaotic change and disorder
that makes things fall apart, leaving us and leading us to a fractured reality and leaving us in the midst of a disrupted sociality. Another thinker, Alvin Toffler, describes today's world by saying, today's world is in the grip of the future shock, which is also the title of his work published in 1970. He calls it as we are in the grip of the future shock, exhibiting psychological anxieties about the individuals and the societies. There is an angst, psychological angst that prevails among individuals and societies. And this condition has been caused by too much change in too short a period of time. What sort of changes has occurred? For instance, the creation of a new geography of disease in terms of color-coded zones. It is called as yellow, orange, red zone. These color-coded zones and border sealing and also increased vigilance. This makes especially the migrants and the immigrants to be seen with a suspicious eye as human carriers of virus. And that creates a sense of social panic. In this sense, pandemic has installed a fear psychosis accompanied by anxiety, suspicion, and paranoia. And this catastrophe is not just a medical crisis alone, not just a biological condition caused by the unseen deadly pathogen, but also a cultural trauma. That's how literary works and writers tend to see it, as a cultural trauma that has created pathologies of fear with perceptible changes in the social behavior and interaction among the people. In this context arises the question, what is the role of literature, art and literature, in producing and perpetuating such social attitudes? Like the past traumas of the world, such as World War, Holocaust, or partition, the trauma of pandemic will also soon be narrativized and historicized. It is just a matter of time. The French psychiatrist Pierre Janet said, only traumatic memory turns something into a traumatic memory need to be turned into a narrative memory. It must be transformed into a narrative memory to restore our understanding, compassion, and empathy, and also to make an appeal to our human sensibilities. However, illness narratives move forward in two directions, or I can say illness narratives carry two dimensions. What are those two dimensions? On the one hand, it can be tragic to offer shocking accounts of cruelty, violence, crisis, and trauma. On the other, it can be a restorative account. It can be a restorative narrative with accounts of courage and resilience. In fact, a tribute to COVID warriors and COVID survivors. And as a result, it can be a mixture of human travails and triumphs. This is what we could expect. In this context, let's trace the literary history of Spanish influenza pandemic of 1918 to 19, which coincided with the armistice of the First World War. It is known that early 20th century is termed as modernism in literary history, but though the modernist movement in art and literature in itself was an offspring of the First World War, now the question arises, was modernism an offshoot of the pandemic too? Earlier, the modernist movement was considered to be an offshoot of First World War. Now there is a new question that arises. Was modernism an offshoot, and was it a byproduct of the virus too? And could it be a viral modernism? That is the new question. And if so, why
it has had very limited appearances in the literary text of those times of 1920s and 30s. Why the reference to Spanish influenza pandemic was very limited? Why there were very few occurrences in the literary text of those times if the modernism is considered to be an offshoot of the Spanish influenza, and if it could be termed as a viral modernism? Why there is a cultural silence, a cultural amnesia around the pandemic outbreak, which happened toward the end of the First World War? In a recent book, which I like to point out here as a point of reference, in a recent book titled Viral Modernism, The Influenza Pandemic and Interwar Literature by Elizabeth Outcome, she labels the early 20th century writing as an imaginative expression of what was known as viral modernism, and she points out some of the reasons for its muteness in the literary text and for the cultural amnesia of the pandemic by saying it can be due to the tragic intensity of the war. The muteness and the silence, the cultural silence around the pandemic could be due to the tragic intensity of the war on the one hand, and on the other, there is a display of, it is a war and its heroism, valor, that was much celebrated, and there was a dramatic appeal when it comes to the display of valor and heroism of soldiers, which stands in opposition and stands against the assault of the invisible flu virus on the human bodies that was considered less heroic. And so there was no drama around the pandemic virus and the pandemic literary events, and thus it became a forgotten pandemic. It was thought to die a hero in the war was one thing, but to die as a victim of flu pandemic was quite another. Perhaps one more important reason for the cultural silence on the influenza may be traumatic events can only be captured after the lapse of a certain period of time. This is because, unlike the war, the Spanish influenza is personal and not collective. It is not a historical disaster, but of discrete private tragedy. That's how it has been perceived. Thus, only in the 1930s, after a decade later, the literary events about pandemic were recorded. And here we have writers like John O'Hara, William Maxwell, Catherine Ann Porter. They did revisit their memories of the outbreak after a decade later in their fiction. In 1939, Porter published her novel, Pale Horse. It is a semi-autobiographical novel titled Pale Horse, Pale Rider, in which she gives an account of her own illness and recovery through the flu experience of the central character, Miranda. And Porter, as an influenza survivor, has said, let me quote, unquote, "It just simply divided my life, cut across it like that, so that everything before that was just getting ready. And after that, I was in some strange way altered. It took me a long time to go out and live in the world again," unquote. How these modernist writers perceive the illness that they have managed to record by reviving their memories and revisiting their trauma after a certain lapse of time. In fact, these modernist writers metaphorized the affected body for the condition of modernity itself, and these stories show how the disease-ridden bodies, or they try to show the disease-ridden, they depict the disease-ridden bodies in their stories as fragmented and broken, both by the pressure of the external condition as well as by the private loss and suffering. As a result, the modern body is disembodied. It is subject to microbial threats. This is how it was represented. And Miranda's body, located in the liminal space between life and death, is nothing but a reenactment. It gets reenacted in this 21st century COVID crisis
despite the advancements of the virology research. So therefore, modernity is thus predicated on the human body and on the mind. And now, in every way, this subject of disease and social dis-ease will find an intense imaginative response from writers across the globe, and they will use this pandemic either as a central event or as a backdrop. And there are also chances that COVID-19 could become the historical marker to segment the literary history into pre-COVID and post-COVID literature. These are some of the speculations about the post-pandemic writings. And the inspiration towards the new writings perhaps could begin in shorter forms as poetry, essays, or in the form of personal reminiscences. That will be an attempt to directly capture and convey the events of pandemic and their emotional responses, which are already on way. If I could point out, Meena Kandasami's poem titled India is My Country is an account, it is an attempt to directly capture and convey the events of pandemic and the emotional responses that it has created in the people. This was published on 25th April 2021. And there was an imaginary interview conducted with COVID-19. That is another kind of short writing that is available, which is interestingly titled as Satanic Viruses. So this kind of shorter forms are possible immediately to capture the immediacy of the effects of pandemic on human lives, whereas to represent the traumatic crisis in narratives as full-fledged or full-length novels and memoirs, as I have mentioned earlier, time has to elapse to treat the catastrophic event like global pandemic with a critical and meditative insight, and only then it will become a nuanced account. If I could refer to Tolstoy, Leo Tolstoy has said that events that are catastrophic should not be captured until about a decade after they occur. Similarly, John Heller wrote Catch-22 almost 25 years after the Pearl Harbor incident. These are the literary evidences already we have to show why time has to elapse in order to capture the social and cultural upheavals of the life and the times that this global pandemic has created. Therefore, this being the literary response, literature about COVID-19 should be written. Maybe we have to wait for that to be written till this virus and COVID crisis comes to an end. Only then it can be represented and captured, especially the social and cultural upheavals of the life and the times can be in a nuanced way, in a literary way, it can be captured and represented using some innovative narrative forms and techniques, such as self-reflexive meta-narrative, or it could be in multiple viewpoints, or in a disrupted temporality, or some new, when I say innovative forms, there are high chances with many more new ways might be invented by writers to represent their narrative forms, and they might adopt newer literary techniques to deal with the challenge of representing COVID trauma, because representing the traumatic event is a challenge in itself, because it has to be presented with some aesthetic and nuanced effect, not as a direct outcome of the disease and the suffering. It has to be presented in a different way using different techniques. So that challenge has to be dealt with by the writers in representing COVID trauma, which might need some time. That's how it has been considered as an important reason that time has to elapse to focus and to capture the crisis of such traumatic events. And hopefully we can expect something best that will inspire our shared humanity in the times to come. With these few words, I would like to end here.
And these are some of my reflections on the post-pandemic writings. And with literary references, I tried to speculate what to expect next as a literary response to COVID crisis. Thank you for this wonderful opportunity. Hope it would have added some new thoughts to the audience, to the existing literary arguments that are available and scholarly references. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chitra, for your wonderful delivery. The topic is, I must congratulate you because the topic is very, very relevant to everyone. Now your presentation is open for discussion. If you want any comment or questions, I request everyone. Yeah, please, I'm ready to take. Any question or comment, if you have, please. Dear participants, regarding Dr. Chitra ma'am's presentations and related topic, if you have any question, queries, you can ask. I think nobody is interested. Thank you so much, Dr. Chitra. It was a pleasure having you here. Thank you, Madam Dr. Sunita. It's my pleasure to get to know you in this forum. Thank you. We will be in touch. Yeah, yes. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir, Program Director. Yeah, welcome. आज के जो हमारे दूसरे की नोट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर कैप्टन डॉक्टर मिर्जा मोहसिन अली खान, नवाब भरूच, गुजरात से, और वो भी स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष और शोध निर्देशक हैं JSM महाविद्यालय अलीबाग, महाराष्ट्र में। आपने 100 से अधिक शोध पत्र और आलेख राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हुए हैं। आप समीक्षक के साथ साथ रचनाकार भी हैं और आपने उपन्यास, रंगत्रय, तंत्र, काव्य संग्रह और कबर खुद्दा के नाम से आपका कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ है KL पचौरी प्रकाशन से। और समीक्षा के क्षेत्र में आपकी कुछ पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे प्रगतिवादी समीक्षक और डॉक्टर रामविलास शर्मा, दिनकर का कुरुक्षेत्र और मानववाद, अनुवाद का समकाल, देवनागरी विमर्श, खंड खंड, अग्निभाव, संवेदना और शिल्प, रहीम के काव्य में पुराख्यान तथा नाटक के क्षेत्र में नाटक विवेचना और दृष्टि। इसके अतिरिक्त आप संपादन में भी अक्षरवार्ता और जनकृति में सहयोगी संपादक हैं और प्राचीन और मध्यकालीन काव्य और एक मध्यकालीन और आधुनिक काव्य जो पुस्तक है उसमें आप सह संपादक हैं। आपको नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित शोध वर्ग के अंतर्गत शोध निबंध पर अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दलित साहित्य अकादमी द्वारा आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फेलोशिप सम्मान प्राप्त हुआ है। कुलाबा गौरव सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। और एक आपकी जो बहुमुखी आपका जो व्यक्तित्व है उसका एक जो रूप है वो NCC अधिकारी का है और NCC अधिकारी के रूप में आपको DG बैटन सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ बुला रही हूँ कैप्टन डॉक्टर मिर्जा मोहसिन अली खान को कीनोट स्पीच के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता मैडम का बहुत बहुत आभार, उन्होंने परिचय कराया। मैं रिसर्च कल्चर सोसाइटी का भी बहुत आभार मानता हूं जो लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं, चिराग जी, और निरंतर हम उनसे जुड़े हुए हैं और निरंतर वो इस दिशा में सक्रिय हैं। और जिस तरह से जिस स्तर और गुणवत्ता के साथ वे कार्यक्रम करा रहे हैं वो एक अकादमिक स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार
माना जा सकता है और मानना चाहिए। मेरे सभी साथी एस चित्रा मैडम जिनका भी व्याख्यान था, मकवाना साहब जो हमसे निरंतर हमारे कार्यक्रमों से अपने कार्यक्रमों में मैं निरंतर उन्हें पाता रहा हूं, और सभी सुनने वाले प्रतिभागी श्रोता जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का अभिवादन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के विषय में जो मुझे एक कीनोट स्पीकर के तौर पे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का विषय राष्ट्रवाद से संबंधित है। राष्ट्रवाद का वर्तमान परिदृश्य कह लें या राष्ट्रवाद का वर्तमान स्वरूप। ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर लोग हाथ डालने से थोड़े कतराते भी हैं, संकोच भी होता है, संकट भी आता है, समस्याएं भी सामने आती हैं, विरोध भी दर्ज होते हैं, और भी कह सकते हैं कि एक विवाद का विषय बनकर खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ विवाद के विषय के अनुसार बात नहीं करूंगा। मस्तिष्क में कोई ऐसा विचार न लाए कोई कि कोई पार्टी विषय से संबंधित बात की जा रही है या किसी से प्रभावित होकर बात की जा रही है। मैं एक अकादमिक स्तर पर किए गए प्रयासों से संबंधित बात कर रहा हूं और अकादमिक बात कर रहा हूं, कोई राजनीतिक पार्टी वगैरह या अन्य से प्रेरित होकर ये व्याख्यान नहीं है। और इसमें मेरे अपने अभिमत हैं, रिसर्च कल्चर सोसाइटी बड़ौदा से संबंध है अवश्य, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई समस्या या उन पर किसी भी तरह की कोई यूं कह सकते हैं कि विरोध दर्ज ना किया जाए, ये मेरा आग्रह और निवेदन है। कारण इसका यह है कि राष्ट्रवाद जिस तरह से भारतीय परिवेश में आज के समय में उभरा है, वो राष्ट्रवाद धीरे धीरे एक समस्या बनती जा रही है। वो समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, बल्कि देश की परिसीमाओं के भीतर उपजी समस्याओं के धरातल पे हमें उसे देखना होगा। राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज है, उसका प्रभाव, उसके जो विनियम हैं वे, उसकी भावनाएं, उसका यूं कह सकते हैं सिद्धांत पक्ष और व्यवहारिक पक्ष बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। हर देश यही चाहता है कि हम राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रवाद को लेकर चलें, लेकिन अब देखने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नव विचार प्रणालियां काम कर रही हैं, नव विचार सिद्धांत जो आए हैं और नव्य व्यवहारिक विचारधाराएं और उनसे संबंधित लोगों की फिलोसॉफिकल थॉट जब नए मूल्यों को लेकर उभरी है तो वह एक अलग प्रकार की है। इसलिए यह जो यूरोप से पैदा हुआ राष्ट्रवाद है वो अब यूरोप के द्वारा ही नकार दिया जा रहा है। क्यों नकार दिया जा रहा है? क्योंकि जिस समय राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता थी, आवश्यकता थी, जिस समय राष्ट्रवाद का बोलबाला था और एक परिवेश बन गया था राष्ट्रवाद को लेकर, वो राष्ट्रवाद से हम आगे निकल चुके हैं। अब स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। अब जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों का विभाजन हो चुका है। राष्ट्रों की अपनी सीमाएं हैं, राष्ट्रों की अपनी नीतियां हैं, राष्ट्रों के अपने संविधान हैं। कहीं लिखित संविधान है तो कहीं मौखिक संविधान है या अलिखित संविधान है। उनकी अपनी नीतियां बन गई, उनकी अपनी सीमाएं डिसाइड हो गई हैं। वो सब साम्राज्यवाद के समय में जब राष्ट्रवाद जागा उससे संबंधित करके देखना होगा। यहां आपको एक बात स्पष्ट कर दी जाए कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद बहुत निकट की चीज है, क्योंकि साम्राज्यवाद जो है वो साम्राज्यवाद अपनी परिसीमा को बढ़ाने के लिए, आर्थिक आधिपत्य जमाने के लिए, सांस्कृतिक आधिपत्य जमाने के लिए और जिस तरह से संस्कृति को आगे ले जाया जाता है उस संस्कृति को आगे ले जाने के लिए होता है। मैं
अगली स्लाइड के लिए निवेदन करता हूं कि अगली स्लाइड बताई जाए। ये एक राष्ट्रवाद का विविध आयाम है। इस राष्ट्रवाद के विविध आयाम को आपको समझना होगा। क्यों राष्ट्रवाद का विविध आयाम? ये जो आपके सामने कोलाज दिख रहा है, ये कोलाज में हमने राष्ट्रवाद के विभिन्न यूं कह सकते हैं चेहरे लिए हैं। उन चेहरों में राष्ट्रवाद हमें नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से साहित्य में राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, जिस तरह से फिल्मों में राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, जिस तरह से चैनल राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये सारा मिला जुला एक विचार विनिमय, विचार व्यापार, विचार श्रृंखला और विचारों का स्तरीकरण, या हम कह सकते हैं विचारों की लेयर आपके सामने, आपके मस्तिष्क में जमती चली जा रही है। कभी कभी ये लेयर इतनी घालमेल वाली होती है कि एक लेयर दूसरी लेयर में से निकलकर मिश्रित कर देती है हमारे विचारों को, हमारी फिलोसॉफिकल थॉट को, हमारी कल्चरल कह सकते हैं हमारी सांस्कृतिक दृष्टि को विकृत भी कर देती है। इस विकृति वाले समय में राष्ट्रवाद के रेशों को पहचानना होगा, राष्ट्रवाद के बुन रहे धागों को पहचानना होगा। क्या राष्ट्रवाद के धागे जो एक दूसरे में से होकर चादर बुन रहे हैं, क्या वो चादर सही रूप में बनी हुई है? क्या उस चादर का रंग बदल गया है? क्या वो चादर के रूप में है या के रूप में है? ये हमें यहाँ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह का प्रोपेगेंडा राजनीतिक पार्टियां फैला रही हैं, वो राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा से राष्ट्रवाद को नापना एक गलत पैमाना सिद्ध हो सकता है। और जब हम बुखार को गलत पैमाने से नापेंगे तो उसका परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्यों खतरनाक हो सकते हैं? क्योंकि बुखार के लिए थर्मामीटर बना है। अगर थर्मामीटर का हम इस्तेमाल करेंगे बुखार नापने के लिए, तो हमें बुखार का पता चलेगा कि आपको तापमान कितना है, आपके शरीर का तापमान कितना है। और अगर हम थर्मामीटर से ना नाप कर हम अन्य बैरोमीटर या अन्य किसी चीज से नापते हैं, तो उसका परिणाम ना तो परिणाम आएगा और ना ही हमारे बुखार के बारे में हम ठीक तरीके से जान पाएंगे। तो जिस यंत्र से जिस चीज को नापा जाता है, उसी को नापा जाए, उसी को मापा जाए, उसी की पड़ताल की जाए। और अगर हम दूसरे राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरी तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, पार्टीवादी विचारधारा लेकर आते हैं और पार्टी की विचारधारा को राष्ट्रवाद मान लेते हैं, तो यहां हम देश के लिए बहुत गलत बात पैदा कर देते हैं। क्योंकि पार्टी एक किसी विचार, सिद्धांत और किसी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से पैदा होती है। जब वो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पार्टी अडॉप्ट कर लेती है और वही अडॉप्टेशन यदि सामान्य नागरिक कर ले और उसे एक अभियान के रूप में चलाया जाए, एक कार्यक्रम के रूप में चले जाए, उसको परियोजना के रूप में चलाया जाए, उसे उद्देश्य के रूप में चलाया जाए, तो फिर बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रस्फुटन होता है जिसमें बिखराव है, टूटन है, जिसमें यूं कह सकते हैं विच्छेदन है, इसमें यूं कह सकते हैं कि सारी जो एक सरलता है, एक तरलता है, वो टूटकर दूसरी दिशाओं में बढ़ जाएगी। और जो नदी की धारा, जो मुख्य धारा जो बह रही थी भाईचारे की, सांस्कृतिक समन्वय की और राष्ट्रीय एकता की जो धारा बह रही थी, वो विच्छिन्न हो जाएगी और सारी परिनालियों के बीच में से निकलकर वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगेगी। वो हमारे राष्ट्रवाद के लिए एक खतरा सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रवाद का अर्थ, स्वरूप और उसके प्रकारों पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। राष्ट्रवाद का जो कह सकते हैं कि जो स्वरूप है, वो एक साधारण रूप में आपको यहां देखने को मिलेगा। राष्ट्रवाद की जो एक मैंने सिंपल बात कही है, नेशनलिज्म से उसे अंग्रेजी में उसे नेशनलिज्म बोला जाता है। लेकिन राष्ट्रवाद होता क्या है? देखिए, देशभक्ति और राष्ट्रवाद ये दो भिन्न बातें हैं। ये दो भिन्न बातें किस स्तर पे हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन
राष्ट्रवाद क्या है, पहले इसके हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लें, ये होती क्या है। राष्ट्रवाद भावनात्मक रूप से राष्ट्र में रह रहे उस सामुदायिक ऐतिहासिक परंपरा के महत्व देते हुए उसके समस्त तत्वों की समान रूप में एक मानते हुए उसे आदर्श रूप में देखने के पक्षपाती हैं, जिसमें संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म, राष्ट्र की सीमाओं को देखा जा सकता है। राष्ट्रवाद जाति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय की परिसीमा से मुक्त एक भावनात्मक और विचारात्मक दृष्टि है जो देश के प्रत्येक नागरिक में मौजूद रहती है। ये एक राष्ट्रवाद की सरल सहज परिभाषा है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद देश में रह रहे जो नागरिक हैं, जिनको नागरिकता प्राप्त है, जो जन्म से यहाँ पैदा हुए हैं उनको नागरिकता, या आयातित जो शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों को प्रदान की गई नागरिकता से संबंध है। अब ये एक भावनात्मक लहर है। राष्ट्रवाद एक वैचारिक, भावनात्मक तो है ही, लेकिन एक वैचारिक प्रणाली के तहत, एक सैद्धांतिक रूप के तहत आपके सामने पैदा होता है। और ये तब पैदा हो जाता है जब हम यूरोप में जब औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण के साथ जब साम्राज्यवाद विस्तार पाता है, और साम्राज्यवाद विस्तार के अंतर्गत जिस तरह के औपनिवेशिक रूप विश्व में सामने आते हैं, सबसे ज्यादा औपनिवेशिक रूप उस समय में ब्रिटिश के थे। जब औपनिवेशिक रूप सामने आए तो उन औपनिवेशिक रूपों की से दास्ता से मुक्ति के लिए किए गए सामान्य संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और सैद्धांतिक रूप से किए गए संघर्ष के बदौलत जब हम अपने राष्ट्र की परिसीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिए, उसका परिचालन करने के लिए, उसके पूरे कामकाज को देखने के लिए जब हम संघर्ष करने लगे, तब जाकर राष्ट्रवाद की एक परिकल्पना हमारे सामने विधिवत रूप में उपजी। राष्ट्रवाद अपनी राष्ट्र की सीमाओं को बरकरार रखने के लिए, सीमाओं का परिसीमन करने के लिए, परिसीमन करने के साथ साथ सीमाओं को दृढ़ करने के लिए और उस दृढ़ सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर है। अब उस दृढ़ सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे पास फोर्सेस हैं, हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो विधिवत रूप में जो कह सकते हैं संवैधानिक रूप में मान्यता देकर उन्हें यूं कह सकते हैं कि राष्ट्र को परिसीमन किया जाता है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो राष्ट्रवाद हमारे सामने एक रूप देखने को मिलता है। लेकिन ये तो हो गई सीमाओं की चर्चा कि सीमाओं पर राष्ट्र को कैसे सुरक्षित किया जाए और राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूसरे राष्ट्र से कैसे दूर रखा जाए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई एक राष्ट्रवाद का स्वरूप हमारे देश के भीतर, हर एक देश के भीतर, हमारे नहीं, चाहे अमेरिका हो या यूरोप के कई देश हो, अफ्रीका के कई देश हो, अमेरिका के हो, जितने भी महाद्वीप है उनमें बटे हुए देशों के अंतर्गत बाहरी राष्ट्रवाद और भीतरी राष्ट्रवाद। भीतरी राष्ट्रवाद एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है। क्यों अलग प्रकार का है? देखिए, जो सीमाओं पर सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं वो वैधानिक, संवैधानिक और कानून के माध्यम से की जा रही है, वो राष्ट्र को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जो देश के भीतर जिस तरह से राष्ट्रवाद का अभियान चलाया जाता है, वो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित, आइडियोलॉजिकल या यूं कह सकते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से सामने लाया जाता है। हम सांस्कृतिक वर्चस्व चाहते हैं, हम संस्कृति का उन्नयन चाहते हैं, हम संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर गौरवशाली अभिमान के द्वारा अपनी परंपरा का आवरण ओढ़कर और संस्कृति को विकसित बताकर जब हम दूसरी संस्कृति पर हमला करने लगते हैं और हमला करके उसकी भाषाई, उसकी जाति, उसकी धार्मिक, उसकी सांस्कृतिक और उसकी ऐतिहासिक परंपराओं को जब हम क्षति पहुंचाने लगते हैं, तो वो राष्ट्रवाद कभी नहीं होता है।
राष्ट्रवाद वो हो ही नहीं सकता है। वो तो फिर एक वैचारिक आंदोलन, एक वैचारिक कार्यक्रम, एक वैचारिक सांस्कृतिक अभियान कहलाता है, जिससे हम अपने राष्ट्र के उन नागरिकों को दबाने, कुचलने, उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, या हमारी विचारधारा के विरुद्ध उनकी विचारधारा है, या हम उन्हें विरुद्ध मानने लगते हैं। ये एक यूं कह सकते हैं एक विरोधाभास की स्थिति है, और ये विरोधाभास की स्थिति वर्तमान में देखी जा सकती है, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से जिन राष्ट्रीय पार्टी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो संबंध है वो इस तरह के अभियानों में जुटी हुई है। वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो तो पार्टीवाद, सांस्कृतिकवाद या सांस्कृतिक वर्चस्व या ऐतिहासिक वर्चस्व या ऐतिहासिक गौरवशाली परंपराओं की पुनर्स्थापना हुई, वो राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद एक अलग चीज है जो यहां पर आपके सामने राष्ट्रवाद के स्वरूप में बताई जा रही है। मैं यहां राष्ट्रवाद के स्वरूप के बारे में कुछ बात पढ़ता हूं, वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रवाद, कोई बात नहीं, पढ़ाओ। राष्ट्रवाद लोगों के अभिमान और अस्तित्व से सीधा जुड़ा हुआ है। हमारा अभिमान, हमारा देश हमारा अभिमान है। क्यों अभिमान है हमारा देश? क्योंकि हम यहाँ अपनी भौगोलिक सीमाओं में सुरक्षित हैं, हम यहाँ पर जीवन जी सकते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं, और जो कानून बनाए गए हैं वो एक रूपता में उनका पालन करते हुए हम अपने अस्तित्व को बचा कर रह सकते हैं। तो इस अभिमान और अस्तित्व की जो बात है वो सीधी जुड़ी हुई है। दूसरी है, अपनी विभिन्न अस्मिताओं के ऊपर राष्ट्र के प्रति निष्ठा को महत्व दें। अब देखिए, विभिन्न, यहां पर बात है विभिन्न अस्मिताएं। विभिन्न अस्मिताएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, विभिन्न अस्मिताएं हमारी धर्म की होती हैं, हमारी संस्कृति की होती हैं, हमारी परंपराओं की होती हैं। विभिन्न अस्मिताओं की बात कर रहा हूं, हमारी भाषा की होती है, हमारे इतिहास की होती है। और भारत एक बहुभाषी देश, बहुधार्मिक देश, बहुनस्ली देश और बहुजातीय देश और विविधताओं का देश है। विविधताएं यहाँ इतनी हैं कि लोग देखकर हैरान हैं कि इतनी विविधताओं वाला देश कैसे एक साथ यहाँ पर लोग रह सकते हैं। और सारी विविधताओं वाले देश जो हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे अन्य हमारे पड़ोसी राज्य हो या राष्ट्र हो, वो सब अपनी अस्मिताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। उनकी सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं, उनकी ऐतिहासिक अस्मिताएं हैं, उनकी धार्मिक अस्मिताएं हैं, उनकी तमाम प्रकार की अस्मिताएं। जब उन अस्मिताओं के ऊपर राष्ट्र के प्रति निष्ठा को महत्व दें, यहां हम अपनी अस्मिताओं को महत्व देते हैं, राष्ट्र की निष्ठा को महत्व नहीं देते, यहां गड़बड़ पैदा हो जाती है। यहां फिर हम संस्कृति के पक्षकार बनकर खड़े हो जाते हैं। हम संस्कृति को या अपनी गौरवशाली परंपराओं को याद करते हुए हम दूसरों पर फिर अन्याय करने लगते हैं। फिर वो राष्ट्रवाद नहीं रहता है, फिर वो सांस्कृतिक निष्ठा, सांस्कृतिक गौरव, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना, संस्कृति का अत्याचार हो जाता है। तो इससे हमें बचना चाहिए और हमें देश को महत्व देना चाहिए। और देश को महत्व कब दे सकते हैं? हम देश को तब दे सकते हैं जब हमारे मस्तिष्क में समावेशी राष्ट्रवाद की बात हो। समावेशी राष्ट्रवाद क्या है वो आगे हम चर्चा करेंगे। नंबर 3, यह स्वतः निश्चित होता है कि वे राष्ट्र के कानूनों में विश्वास करेंगे, उनका हर पालन हर संभव परिस्थितियों में करेंगे। राष्ट्रवाद यूं कह सकते हैं कानून का पालन करने की एक परिसीमा, एक बाउंडेशन निर्धारित करता है। ये वास्तव में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का संबंध सीधे सीधे संविधान और देश की भौगोलिक स्थिति और देश के लोगों से जुड़ा हुआ है, न कि सांस्कृतिक अस्मिताओं के लिए किए गए संघर्ष, न विवाद और न समस्याओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सांस्कृतिक समस्याएं, सांस्कृतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराएं, इतिहास की गौरवशाली परंपराएं, वो हमारे इतिहास, संस्कृति या अन्य विषय हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का विषय अलग होता है।
राष्ट्र के संबंध में ये सत्य है कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी जैसी धारणा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद के तहत स्वतंत्र प्रतिभाओं का विकास अवरुद्ध हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर कलाओं के संबंध में। राष्ट्रवाद क्या चाहता है? राष्ट्रवाद चाहता है एकरूपता, राष्ट्रवाद चाहता है अनुशासन, राष्ट्रवाद चाहता है एक ऐसी फ्रेम जिसमें पूरे राष्ट्र की जो सीमाएं हैं वो बैठ जाएं और उनके जितने भी नियम, उपनियम, सिद्धांत और व्यवहार हैं वो सारे एक फ्रेम में फिट हो जाएं और एक ऐसा सांचा तैयार कर दिया जाए, एक ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जाए जो सिर्फ राष्ट्रवाद की ही बात करे। यहां पर जो स्वतंत्र प्रतिभाएं हैं, उन स्वतंत्र प्रतिभाओं की हत्या हो जाती है, उनकी वैचारिक जो कह सकते हैं आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी नष्ट हो जाती है, क्योंकि प्रतिभाएं जो होती हैं वो स्वतंत्रता से पैदा होती हैं और जब हम स्वतंत्र विचारों को दबा देते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, तो नई प्रकार की जितनी भी जो कह सकते हैं कि प्रतिभाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ये एक बात है। समावेशी राष्ट्रवाद की मैंने आपको बात कही। समावेशी राष्ट्रवाद एक, मैं मानता हूं, अच्छा राष्ट्रवाद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी धर्मों, सभी नस्लों, सभी जातियों, सभी संस्कृति, सभी भाषाओं, सभी परंपराओं, सभी प्रकार के जितने भी जो नागरिक एक देश में रह रहे हैं, उन नागरिकों की भावनाओं को लेकर चलते हैं, तो समावेशी राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दी क्या आपको? जी जी सुनाई दी थी। नहीं, समावेशी राष्ट्रवाद तक समझ में आया था आपके? जी जी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद यूं कह सकते हैं कि आज हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं और बहुत सारे धर्म के लोग साम्राज्यवादी जो एक अभियान चला था उसके तहत यहाँ आ गए और साम्राज्यवादी अभियान के तहत यहाँ आए और यहीं रह गए। अब वो इसी देश के नागरिक हैं, अब वो इसी देश के लोग हैं और यहाँ पर अगर हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे बल्कि धर्म के समावेशी राष्ट्रवाद की बात करेंगे या धर्म सापेक्ष राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो अन्य धर्मों को खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो उनका धर्म नहीं मानते, इसलिए विरोधी दृष्टि निर्माण हो जाएगी। वैश्विक राष्ट्रवाद भी एक बहुत अच्छी चीज है। विश्व के लोगों को लेकर, उनको नागरिकता को ध्यान में रखकर राष्ट्रवाद की बात की जाए। साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद बहुत संकीर्ण सोच की बात है। ये साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद संकीर्णता के दायरे में जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अपनी सीमाओं को फैलाते हैं, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं इजराइल से। इजराइल अपने राष्ट्र की सीमाओं को फैलाने के लिए फिलिस्तीन पर अगर हमला करता है तो फिर वो साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद कहलाता है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ा रहा है, वो राष्ट्रवाद के नाम पर साम्राज्यवाद फैला रहा है और साम्राज्यवाद किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं हो सकता है आज के समय में, आज के मूल्यों के समय में। आज जिस तरह से एक वैश्विक सोच को हम लेकर चल रहे हैं। हेलो, किसी का माइक्रोफोन शुरू है? मैं निवेदन करता हूँ संचालक महोदय से कि बाकी लोगों को अनम्यूट। विरोधाभास, धार्मिक विरोधाभास और ऐतिहासिक विरोधाभास, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे हीरो रहे हैं पुराने समय में, ऐतिहासिक जिन्हें विभूतियां हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उन ऐतिहासिक व्यक्तित्व को फिर एक आकार देकर राष्ट्रवाद से जोड़कर वो राजनीतिक प्रेरित राष्ट्रवाद शुरू करते हैं। दूसरा अंतिम राष्ट्रवाद जो कह सकते हैं, और भी राष्ट्रवाद के प्रकार हैं, उनमें से एक प्रमुख राष्ट्रवाद है वैचारिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। वैचारिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी हमारे यहाँ आजकल वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि हम विचार सिद्धांत को लेकर, व्यवहार को लेकर हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। संस्कृति को महत्व देकर सांस्कृतिक पुनरुत्थान की स्थापना दिलाने के लिए हम जबरदस्ती
जो यूं कह सकते हैं कि जबरदस्ती संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दूसरी संस्कृति को नष्ट करने की सोच को उत्पन्न कर रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये साहित्य में भी राष्ट्रवाद की बात आई है। साहित्य में हम देख रहे हैं कि भारतेंदु युग के समय में राष्ट्रवाद का उत्थान होता है और वर्तमान समय तक चला आ रहा है। जो साहित्य में राष्ट्रवाद पनपा था भारतेंदु युग में 1850 के आसपास से लेकर द्विवेदी युग, फिर उसके बाद चला आ रहा है। और आजकल तो बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं बहुत सारी जो साहित्य की जो विचारधाराएं हैं वो भी राष्ट्रवाद में बढ़ गई। आप देख रहे होंगे, आपके पास चीजें आ रही होंगी कि एक होता है कि प्रलेख प्रगतिवादी लेखक संघ, अब एक राष्ट्रवादी लेखक संघ भी शुरू हुआ है। राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से जो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान, गौरवशाली परंपरा या एक यूं कह सकते हैं पॉलिटिकली बैकग्राउंड को लेकर उनकी आइडियोलॉजी को ग्रहण करके साहित्य में वो प्रवेश पा गया है। और फिर वो कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी साहित्य की ये एक श्रेणी है या एक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा। तो राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा साहित्य में प्रवेश कर गई है। दिनकर के समय की राष्ट्रवादी विचारधारा अलग है, भारतेंदु युग के समय की अलग है, इकबाल के समय की अलग है, रविन्द्रनाथ टैगोर की समय की अलग है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो ये जो कह सकते हैं राष्ट्रवाद के विरोध में ही थे, राष्ट्रवाद को वो पसंद ही नहीं करते थे। राष्ट्रवाद के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत अलग विचार है। वो कहते हैं ये एक संकीर्ण विचारधारा है और ये संकीर्ण विचारधारा आगे चलकर आपको खतरा उत्पन्न करेगी देश के लिए, और वास्तव में आज ऐसा हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारे कोलाज में आपके सामने चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे कवियों ने राष्ट्र को लेकर सच्ची बात लिखी है। वो एक आइडियोलॉजी लेकर नहीं चले कि एक आइडियोलॉजी के तहत लिख रहे हैं, वो उनके भीतर से निकले हुए शब्द हैं जो कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में ढले हैं। नेक्स्ट। हिंदी के युग आए थे, आपके सामने हैं। समकालीन साहित्य में भी यूं कह सकते हैं राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं। मराठी, उर्दू, असम, बंगला, गुजराती, पंजाबी, सब, कन्नड़, सारे जो हमारी जितनी भी जो संवैधानिक दर्जे से प्राप्त जो भाषाएं, उन सब में राष्ट्रीय विचारधारा है। भारतीय मीडिया में राष्ट्रवाद की हम थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। भारतीय मीडिया में राष्ट्रवाद को एक यूं कह सकते हैं कि पापड़ की तरह तला जा रहा है। अब पापड़ की तरह तला तो है, लेकिन अब पापड़ जलने भी लगा है। ये हमें समझना होगा। जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विचारधारा से राष्ट्रवाद की विचारधारा में जो परिवर्तन ला दिया है, और उस परिवर्तन का जो लेप चढ़ाया है, जो घोल चढ़ाया है, वो घोल लोगों को दिया है और लोग खा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मीडिया के माध्यम से उन परख नलियों का या उन बारीक बारीक जो कह सकते हैं कि ट्यूब्स का निर्माण किया है जो सीधे लोगों के मस्तिष्क में जा रही है, और वहां बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद का ये चेहरा है। राष्ट्रवाद का चेहरा मीडिया जिस तरह से प्रस्तुत कर रही है वो एक अंधकार के युग में प्रस्तुत कर रही है। मीडिया का ये युग मैं अंधकार का युग मानता हूं। मीडिया का ये युग इसलिए अंधकार का युग मानता हूं क्योंकि मीडिया ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। थोड़ी कम हो गई। हम कह सकते हैं कि जापान में जिस तरह का राष्ट्रवाद का चेहरा है वो हमारे यहाँ वो मॉडल के रूप में लाना चाहिए, ना कि राष्ट्र का जो चेहरा जिस तरह से बनाया जा रहा है, राष्ट्रवाद का चेहरा वो विकृत हो रहा है। और उस राष्ट्रवाद के चेहरे में केवल एक ही रंग है, अन्य रंग नहीं है। जिन रंगों की जरूरत राष्ट्रवाद को है वो विविध रंगों की जरूरत है। हम एक रंग में राष्ट्रवाद को नहीं रंग सकते और एक रंग में रंगने का काम भारतीय मीडिया कर रही है। कुछ मीडिया, भारत की कुछ मीडिया जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जो अपनी बात करती है
कि हाँ हम तटस्थ होकर राष्ट्रवाद की बात करेंगे, वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी चैनल राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हो चुके हैं। अगली बात, राष्ट्रवाद मीडिया, फिल्मों में राष्ट्रीयता के भाव आ रहे हैं, देशभक्ति की फिल्में बन रही हैं, देशभक्ति प्रेरित धारावाहिक बन रहे हैं। आप देख ही रहे हैं बहुत सारी फिल्म राष्ट्र से संबंधित आई है, चाहे वो आजादी से संबंधित हो, वर्तमान संदर्भों से संबंधित हो, किसी महापुरुष से संबंधित हो, या अन्य जो राष्ट्र की जो श्रृंखलाएं हैं, राष्ट्र की जो बुनियादी स्वरूप हैं, उन बुनियादी स्वरूपों को लेकर कही गई बात हो। बहुत सारी फिल्में राष्ट्रीयता से संबंधित फिल्में बनी हैं, पिछले समय में भी बनी हैं, आज भी बनी हैं। अगर आप मैं एक बात करूं तो एक फिल्म जो एक अलग मुद्दे पर बनी थी, जो मिग 27 के लिए जो कांड हो रहे थे, जो मिग 27 के जो खराब पुर्जे खरीदे गए थे, उसके विरोध में जो बनी थी रंग दे बसंती, वो रंग दे बसंती फिल्म में भी राष्ट्रवाद का एक सही चेहरा सामने आया था, लेकिन उसमें हिंसा को दर्शाया गया था। हिंसा का मार्ग भी राष्ट्रवाद के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। अहिंसा का मार्ग ही राष्ट्रवाद के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि अहिंसा जीवन की क्षति नहीं करती है। और राष्ट्रगीत तो हमारे सामने बॉर्डर फिल्म ले लीजिए, बॉर्डर फिल्म के बहुत सारे जो गाने हैं वो राष्ट्र से संबंधित है। बॉर्डर फिल्म है, या भगत सिंह को लेकर फिल्म बनाई गई, चंद्रशेखर आजाद को लेकर फिल्में बनाई गई, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, या यूं कह सकते हैं महात्मा गांधी को लेकर कई फिल्में बनी हैं। महात्मा गांधी को लेकर जॉन एडम्बरा की फिल्म बेहतरीन, जिसमें उन्होंने खुद महात्मा गांधी का रोल किया है, वो बेहतरीन फिल्म एक साथ साबित हुई है। महात्मा गांधी को लेकर संजय दत्त ने फिल्में बनाई हैं, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर फिल्में बनी है। तो बहुत सारी फिल्में यूं कह सकते हैं देशभक्ति से प्रेरित बन रही हैं, और देशभक्ति गाने हमारे सामने आ रहे हैं। वो सबको स्पष्ट करना यहाँ मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि सबको सब चीजें पता है। भारतीय पत्रकारिता ने राष्ट्रवाद की हमने बात करी कि भारतीय पत्रकारिता ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद का चेहरा विकृत करने की कोशिश करी, और जो सही बात कर रहा है राष्ट्रवाद को लेकर उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसे विरोधी बताकर, उसे पार्टी विरोधी बताकर, उसे आइडियोलॉजी विरोधी बताकर, उसे सांस्कृतिक विरोधी बताकर, उसे यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक विरोधी बताकर उसे खारिज कर दिया जा रहा है। उसको मीडिया के धरातल से गायब कर दिया जा रहा है। उसे मीडिया का ही अंग नहीं माना जा रहा है। मीडिया का अंग तो उसे माना जा रहा है जो राष्ट्रीय प्रेरित, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे प्रेरित होकर उनके समर्थन में जो बात करे। यानी हम यहां कह सकते हैं कि अब मीडिया भी राजनीतिक पार्टियों के साथ जाकर बैठ गया है, या राजनीतिक पार्टियों को मीडिया ने अपने साथ की बेंच पर बिठा लिया है, अपने साथ की कुर्सी पर बिठा लिया है। ये जो मीडिया स्वतंत्र थी, जो चौथा स्तंभ था, अब वो चौथा स्तंभ के बीच में एक पुल बन गया है। अब वो पुल का आदान प्रदान हो रहा है, और ये एक बहुत खतरे वाली बात मैं मानता हूं, बाकी लोग माने या ना माने। भारतीय पत्रकारिता में जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के सहारे समाचार मीडिया का राष्ट्रवाद, वैचारिक विरोधों का राष्ट्रवाद और समाचार मीडिया, भारतीय राष्ट्रवाद और सरकारवाद और समाचार मीडिया, भारतीय मीडिया का गुट विभाजन और राष्ट्रवाद, ये स्थितियां निकल कर आती हैं आज भारतीय पत्रकारिता और राष्ट्रवाद को लेकर। राष्ट्रवाद का इस प्रकार का स्वरूप बन गया है कि समाचार मीडिया का गुट विभाजन हो चुका है राष्ट्रवाद के नाम पर। कुछ गुट कहते हैं हम राष्ट्रीय चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल घोषित कर रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रीय चैनल घोषित करने की जरूरत नहीं बनती है। यहाँ पर आप राष्ट्र में रह रहे हो, आप मीडिया हो, आपको संविधान ने मीडिया माना है और आपके पास वो लाइसेंस है, संविधान ने उसका आपको लाइसेंस दिया है, तो आप तो वैसे ही राष्ट्रीय मीडिया हो। अब आप बार बार अपने आप को कहो कि हम राष्ट्रीय मीडिया है, हम राष्ट्रीय चैनल है, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये जो गुट विभाजन हो रहा है भारतीय पत्रकारिता में, ये एक गुट विभाजन यूं समझिए कि खाज में कोड़ का काम करेगा और कोड़ में खाज का काम करेगा। सोशल मीडिया और राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक उपज रहा है। सोशल मीडिया में जिस तरह से राष्ट्रवाद को राजनीतिक प्रेरित राष्ट्रवाद बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, सोशल मीडिया अपना स्वरूप विकृत करता चला जा रहा है।
हम उस विकृत और अंधकार में काले भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमें अपना भविष्य टूटा फूटा, विश्रंखलित, लहूलुहान, घायल और शत विक्षत पड़ा हुआ मिलेगा। और तब हम उसका इलाज, हम उसका उपचार, हम उसका ऑपरेशन करना नामुमकिन समझेंगे। तब ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के मांस के इतने टुकड़े बिखेर दिए जाएंगे कि हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारी जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है हमारे जो, उसको उसकी धज्जी उड़ा देगा और उन उड़ी हुई धज्जियों को एक जगह एकत्रित करके फिर से राष्ट्रवाद का चेहरा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से जो सोशल मीडिया में राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से बहकाया जा रहा है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करके अन्य संस्कृतियों का लोप करने का जो प्रयोजन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, वो एक खतरनाक स्थिति को सामने ला सकता है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया और राष्ट्रवाद, विरोधी की राजनीति का राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एजेंडा और सोशल मीडिया मतों और ध्रुवीकरण का राष्ट्रवाद। ये बात सही है, सोशल मीडिया मतों का ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद को एक साथ चला रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा, ये एक तरह की योजना है। मतों का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए? राष्ट्रवाद के नाम पर किया जाए। कौन करे? मीडिया जो हर जगह फैला हुआ है। सरकार तो हर जगह जा नहीं सकती, पार्टियां तो हर जगह जा नहीं सकती है। जा सकता है तो मीडिया जा सकता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, हम प्रतिभाग करते हैं, हम उसमें हिस्सा लेते हैं। उनकी आइडियोलॉजी को जब हम अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं तो अपने थॉट मर जाते हैं और हम उसके थॉट को आरोपित कर लेते हैं। वैचारिक आरोपण जिसे कहते हैं, वो वैचारिक आरोपण हम जब कर लेते हैं तो मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है राष्ट्रवाद के नाम पर। सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन और राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का जब हम प्रतिपादन करने लगते हैं और राष्ट्र को उसका नाम दे देते हैं कि एक ही संस्कृति श्रेष्ठ है, उसके अलावा कोई संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है और यही संस्कृति राष्ट्रवाद है, यहां हम विकृति को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया है उसमें यही सब चल रहा है। सांप्रदायिक नफरत के आधार पर राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक नफरत के बहुत सारे आपके पास मैसेजेस, फोटो, वीडियो क्लिप्स, वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही होंगी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाए जाते हैं। ये एक प्रेरित होकर, एक विचारधारा से प्रेरित होकर, एक संकुचित विचारधारा से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद के नाम पर सोशल मीडिया में सांप्रदायिक नफरत फैलाई जाती है। और जब सांप्रदायिक नफरत को ये राष्ट्रवाद का नाम दे देते हैं तो समझिए हमारा राष्ट्र और पीछे जा रहा है। विरोधों की राजनीति और राष्ट्रवाद, भाई विरोधों की राजनीति और राष्ट्रवाद तो आप देख ही रहे हैं। विरोधों की राजनीति जो आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, अपने नुकसान को बचाने के लिए, अपने मतों को बढ़ाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी गरिमा की स्थापना और उस गरिमा को बरकरार रखने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए और अपना परचम ऊंचा रखने के लिए जब राजनीतिक पार्टियां इस तरह का सोशल मीडिया में प्रसारण करती हैं, तब जाकर इस प्रकार के विरोधों की राजनीति का राष्ट्रवाद हमारे सोशल मीडिया में इंटर करता है। निष्कर्ष, लगभग मुझे ऐसा लगता है आधा घंटा 5 मिनट हो चुके, 35 मिनट हो चुके हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यूरोप में जिन तत्वों को लेकर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और विकास हुआ, वे आज के दौर में कमजोर पड़ रहे हैं या नवी वैचारिकता की प्रतिस्थापन की मांग कर रहे हैं। अब राष्ट्रवाद विश्व पटल पर राष्ट्रवाद विश्व पटल पर आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि नए पक्ष के साथ उभरा है और उसने अपना अस्तित्व दर्शाया है। वैचारिक राजनीति के साथ आर्थिक संबंधों का बहुत अधिक महत्व भविष्य में रहेगा, क्योंकि राष्ट्रों की समृद्धि ही भविष्य की मजबूत आधार सिद्ध होगा। जो राष्ट्र अब भी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, भाषाई अस्मिता के गौरव और अभिमान की कट्टरता से प्रेरित हैं, जो अब भी गृह कला में उलझे हुए हैं, जो अब भी आतंकवाद और अलगाववाद से को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं और आने वाले समय को नहीं पहचान रहे हैं,
वो पिछड़े सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय एक विश्व संस्कृति का समय है। इसमें राष्ट्रों की अस्मिता को सुरक्षित रखकर साझा प्रयासों से नए विश्व का पुनर्संरचना को केंद्रित करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धा को महत्व देंगे। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रवाद ने अपनी शक्ति में बहुत कमजोर नहीं है, और यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके तिरोहण धीरे धीरे होगा। खासकर भारत के राष्ट्रवाद बहुत धीमी गति से अपनी सीमाओं से बाहर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुलता की संशक्ति के साथ भाषा की विविधता और जातीय धार्मिक सांप्रदायिकता, अस्मिता और गहरा संघर्ष मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषाई दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि से भारत को अपने राष्ट्रवाद का नव्य विचारों का चेहरा सामने लाना होगा, जहां सारी संस्कृतियों, सारी भाषाओं, सारी नस्लों, सारी जाति, ऐतिहासिक परंपराओं के निर्वहन के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हुए एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता की बात की जाए, तब जाकर राष्ट्रवाद का नव्य चेहरा उत्पन्न हो सकता है। और हम सांस्कृतिक वर्चस्व जब चाहेंगे, हम आइडियोलॉजिकल वर्चस्व जब चाहेंगे, हम राजनीतिक वर्चस्व जब चाहेंगे और थोपेंगे, तब राष्ट्रवाद विकृत होता चला जाएगा। राष्ट्रवाद के लिए हमारे दिमाग में जो बातें हैं वो एकदम क्लियर, साफ और बहुत तटस्थ होना चाहिए। यदि हम प्रेरित राष्ट्रवाद को लेकर चले तो हम समावेशी राष्ट्रवाद की कभी बात नहीं कर पाएंगे। समावेशी ही राष्ट्रवाद सबसे श्रेष्ठ होता है। सभी का मैं यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी जो हमारे विद्वान साथी गण हैं, उन्होंने सुना, प्रतिभागियों ने सुना। हो सकता है मुझसे कुछ बात अलग तरह से कह दी गई हो और आपने अलग तरह से उसका मायना ले लिया हो या अर्थ लगा लिए हो। उन अर्थों को आप दिल पर ना लें, क्योंकि एक बहुत नाजुक, प्रासंगिक, ज्वलंत और वर्तमान सापेक्ष एक टॉपिक है, जिसमें हमें तटस्थता से और राष्ट्र को केंद्रित करके बात सुनना, समझना चाहिए। हमें अन्य वादों से, विवादों से बचते हुए, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को साइड में रखते हुए हमें केवल उन बातों पर चर्चा करनी चाहिए जो राष्ट्र को वास्तव में राष्ट्रवाद माने और राष्ट्र को आगे बढ़ाए। मैं सभी का यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ। डॉक्टर जो हमारे रिसर्च कल्चर सोसाइटी के डॉक्टर चिराग हैं, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मकवाना साहब का, सुनीता साहब का, मैडम का, जिन्होंने यहाँ संचालन किया, और सभी प्रतिभागियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन खान। और आपने सच में बहुत चुनौतीपूर्ण विषय लिया और मुझे पूरी उम्मीद है इस पर जरूर प्रश्न होंगे, लेकिन क्योंकि समय काफी हो गया है तो मुझे लग रहा है कि पहले सारे स्पीकर्स अपनी बात कह लें, उसके बाद जब सब वक्ताओं की बात समाप्त हो जाएगी तो हम एक साथ प्रश्न लेंगे। संवाद का जो सत्र है वो एक साथ आरंभ कर सकते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर हमीर भाई पी मकवाना जी को, जो प्राचार्य हैं श्री JM पटेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज। आप आनंद, गुजरात से हैं और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े रहने के साथ साथ आप अकादमिक कार्यों में भी आपकी बराबर की भागीदारी रहती है। डॉक्टर हमीर भाई पी मकवाना, आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। आ रही है मैडम? जी बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद। आज रिसर्च कल्चर सोसाइटी बड़ौदा द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन द्वारा जो आयोजित 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया, मूल रूप से पिछली बार भी इस पर चर्चा विचार हुए थे
मैं विशेष रूप से रिसर्च कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष को बधाई देना चाहूँगा। मूल रूप से जो वर्तमान परिदृश्य और साहित्य, समाज और मीडिया के अंतः संबंध की पहचान कराना जो मूल उनका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को सार्थक करेंगे। और मूल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर एस चित्रा जी, जो अंग्रेजी विभाग से रॉयल विश्वविद्यालय भूटान से जुड़े थे। हाल ही में जिनका संवाद पूरा हुआ, डॉक्टर मोहसिन खान जी, डॉक्टर सुनीता जी, इन सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मूल रूप से जो बात मुझे कहनी है विशेष रूप से कि इस परिसंवाद, इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में जो विषय दिए हैं, इन विषयों में मूल रूप से जो विषय पर मैं बात अपनी रखना चाहता हूं, हालांकि मोटे तौर पर यह बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है कि दिव्यांग जनों के जीवन में साहित्य और मीडिया की क्या भूमिका रहती है। बहुत ही संवेदनशील विषय आज हमारे समाज के लिए है, क्योंकि भारतीय साहित्य, मीडिया एवं सिनेमा को यथार्थवादी दृष्टि अपनाकर विभिन्न सामाजिक पहलू को न केवल उजागर करना होगा, बल्कि उन समस्यामूलक पहलू के समाधान का उपाय भी, यानी कि रास्ता भी उसे समाज के सामने रखना होगा। क्योंकि साहित्य, सिनेमा या मीडिया ये हमारे लिए, ये हमारे समाज के लिए, ये मानव जाति के लिए जागरूकता का एक सशक्त माध्यम मानता है। सिनेमा के विकास के लिए साहित्य का भी योगदान कम नहीं आंकना चाहिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के विभिन्न जन समुदायों को सशक्त अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम के रूप में भी मीडिया अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और ये सेवा बखूबी निभा रहे। मित्र मोहसिन खान, जिन्होंने अपनी बात अभी रखी है मीडिया के बारे में, ये वैचारिक धरातल पर उन्होंने जो बात रखी है, तो ये बात वैचारिक धरातल पर या व्यक्तिगत धरातल पर ऐसी हो सकती है। जो बात है वो है दिव्यांग जनों की। साहित्य में समय और स्थिति के साथ उनके विमर्श की चर्चा हो रही है, लेकिन साहित्य जिस से नारी विमर्श की चर्चा हो रही है, दलितों की चर्चा हो रही है, किन्नर की चर्चा हो रही है, बाल विमर्श की चर्चा हो रही है, आदि जनजाति संबंधित चर्चाएं हो रही है। हाल ही में वृद्धजनों के विमर्श की भी बात या चर्चा हो रही है। उसी प्रकार दिव्यांग विमर्श पर भी चर्चा विशेष रूप से होनी चाहिए। मोटे तौर पर ये मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात संबोधन में विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द के प्रयोग के आग्रह एवं इससे जुड़े विमर्श ने विकलांग जनों को विशेष रूप से चर्चा के केंद्र में ला दिया। मूल धारा के साथ उसे जोड़ने का एक प्रयास हुआ है, बेशक ये प्रयास है। सामान्य रूप से विकलांगता ऐसी शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता।
अक्षम होता है। तकनीकी दृष्टि से विकलांग एवं विकलांगता व्यापक संदर्भ वाले शब्द हैं मित्रों, जिनकी एक से अधिक परिवर्तनशील भाषा या परिभाषाएं हम दे सकते हैं और हो भी सकती है। खैर, आज दिव्यांग जनों या बच्चों को हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। ये समाज के लिए, हमारे समाज के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक हो सकती है, परंतु मूलभूत रूप से जो बात है कि शिक्षा में समान अवसर का समावेश या एकीकरण एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना होगा। समावेशी शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण उनके स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव आज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। दिव्यांग बालकों के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करना, ये भी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आज मूल रूप से है। नई शिक्षा नीति में भी ये प्रावधान दिया जा रहा है। इस काम में मूल रूप से जो हमें दिव्यांगता जो है उससे हमें जुड़ना है मीडिया के साथ, कि मीडिया, साहित्य, मीडिया या सिनेमा जगत किस प्रकार से उसे मुख्य धारा में प्रवेश कराने के लिए किस प्रकार मशक्कत जो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने विकलांग जनों के लिए, साहित्य ने विकलांग जनों के लिए, सिनेमा ने विकलांग जनों के लिए प्रयास नहीं किया है, ऐसा कहने का मेरा भावार्थ नहीं है। मित्रों, मूल रूप से मेरा भावार्थ ये है कि जिस तरह से हम उसे मुख्य धारा में प्रवेश कराना चाहते हैं, उस प्रवेशगत उसकी जो हिस्सेदारी या भागीदारी होनी चाहिए वो विशेष रूप से कार्यान्वित हो चुकी है। इसीलिए मैंने पहले ही आपके सामने ये उल्लेख किया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये शब्द, विकलांगता शब्द को दूर कर दिया है और दिव्यांग शब्द का प्रयोग करके उन्होंने इसे मुख्य धारा में प्रवेश कराने का प्रयास अवश्य किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना भी आभार हम माने उतना कम हो सकता है। और ऐसी स्थिति स्कूल लेवल से लेकर हम विश्वविद्यालय तक की बात करते हैं कि इन सभी जगहों पर इन विकलांग जनों या विकलांग विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना, ये सिर्फ मीडिया, साहित्य की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारी भी जिम्मेदारी कोई कम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिव्यांग जनों के जीवन में जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, हो रहा है परिवर्तन, वो मेरे हिसाब से पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन एक शुभारंभ माना जा रहा है। और इस शुभारंभ मानकर हमें ये संतोष करने की आवश्यकता नहीं है, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जिसे हम आईसीटी कहते हैं, एक सहायक प्रौद्योगिकी के रूप में जो कार्य उनके साथ जुड़कर उनकी बहुत सारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं में से कुछ बाधाओं को कम करने का प्रयास जो है टेक्नोलॉजी यानी कि मीडिया के माध्यम से हो सकता है। दिव्यांग जनों को शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार का एक अभूतपूर्व स्तर प्रदान कर सकने की क्षमता जो है वो टेक्नोलॉजी में है, मीडिया में है। साथ ही उन समुदाय के आर्थिक एवं सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने का अवसर भी इसे प्रदान हो सकता है। मित्रों, इस मानवीय संवेदनाओं को बचाए रखने की ज्यादा जिम्मेदारी साहित्य और मीडिया की। मैं ऐसा हरगिज नहीं कहूंगा कि साहित्य और मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति की दो साइड तो होती ही है, ये अलग चर्चा का विषय है। हाँ, हमारे साहित्यकारों एवं मीडिया ने, मैंने जैसे कहा कि समय समय पर अपने दायित्व का निर्वाह उन्होंने
बखूबी से किया है, परंतु ये एक संवेदनशील समाज का जो ताना बाना सुरक्षित रख सके, ये जवाबदेही हम सबकी मित्रों बनती है। मित्रों, दिव्यांग जनों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और न भी उनकी प्रतिभा पर हम कोई संदेह कर सकते हैं। हाल ही में पैरालंपिक की हम बात करते हैं मित्रों, दीपा मलिक जो शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल सन हो जाने के बावजूद भी शॉट तथा उन्होंने नाम रोशन किया है। प्रमोद भगत जो बैडमिंटन पुरुष में गोल्ड मेडल जीता है। देवेंद्र जाजरिया ने पुरुषों में जेवेलिन और थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अवनी लेखारेगा पैराशूटर में पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली जो महिला बनी। हाल ही में गुजरात की भाविना पटेल टेबल टेनिस में सेमीफाइनल तक ये पहुंची है। प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। विनोद कुमार ने ब्रांज मेडल जीता है। एक युगल दंपति है मुकेश और पूनम, जो नेशनल में कई गोल्ड मेडल इन दोनों ने प्राप्त किए हैं, विकलांगता होने के बावजूद भी। उसी प्रकार श्वेता शर्मा की हम बात करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल प्राप्त किए हैं। ये तो कुछ उदाहरण है मित्रों। वास्तविक जीवन में दिव्यांगों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, लेकिन साहित्य और मीडिया तथा सिनेमा जगत के माध्यम से उनकी स्थितियों में सुधार आ सकता है, सुधारा लाया जा सकता है और हो भी रहा है। लेकिन जितनी आवश्यकताएं है, कोई भी रिजोल्यूशन शुरू होता है तो उसका परिणाम तत्काल हमें प्राप्त नहीं होता, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये आरंभ हो चुका है, इनकी शुरुआत, उनका शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि साहित्य, मीडिया और सिनेमा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आज जितने भी या जो भी दिव्यांग जनों की स्थिति पर हम विचार करते हैं, क्योंकि जो लोग इनके शिकार है, जो हमारी तरह सक्षम नहीं है, जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से उनमें अक्षमता है, और इन शारीरिक रूप से अक्षमता वाले व्यक्ति को जब हम उनके मन की बात हम जानते हैं, उनके विचारों को हम जानते हैं, हम उसका अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्थिति जो होती है बहुत ही दयनीय होती है। तो आज दिव्यांग जनों को प्रोत्साहन देने का समय, यह समय की मांग भी है, और उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाकर आगे लाना होगा, समाज की मुख्य धारा के साथ शामिल करना होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से उनका उत्थान किया जा सके, और इसी योजनाओं और कई प्रकार की सुविधाएं केंद्र सरकार और सरकार के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है, लेकिन उन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो मीडिया की है, सोशल मीडिया की है, समाज की भी बनती है। सिनेमा में कई प्रकार की फिल्में इन दिव्यांगों को लेकर आई है, उसका जो सब लोग जानते ही है कि दिव्यांग जनों पर प्लॉट तैयार करके बहुत सारी सिनेमा बनी है और हम सब लोगों ने देखी भी है। लेकिन मूलभूत रूप से जो मैं बात कहना चाहता हूं सब बुद्धिजनों के सामने, कि मूल रूप से जितना हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और इसमें हम कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बात हमें फिर से विचार करने पर विवश कर देती है कि सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, समाज की, हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है। और बहुत सारी सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं को जन जन तक, इन लोगों तक, क्योंकि गांवों में भी इस प्रकार की बहुत ही दयनीय स्थिति होती है जहां सोशल मीडिया शायद न हो, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज एंड्रॉयड फोन हर एक गांव तक पहुंच चुका है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण ये जो परिवर्तन आया है बहुत बड़ा, मोटे तौर पर ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के माध्यम से जो इन लोगों के जीवन में जो रोशनी आ रही है, उन लोगों के जीवन में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए मीडिया का आभार मानना
ये जरूरी बनता है। तो मित्रों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं है, इन योजनाओं को इन जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बनती है। समाज के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे मीडिया या प्रौद्योगिकी जो संसाधन है, उन संसाधनों ने दिव्यांग जनों की जो कुछ समस्याएं हल कर दी है। इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीनिंग आवर्धन आया है, बड़े प्रिंट वाले कीबोर्ड का आविष्कार हुआ है, ब्रेल एम्ब्रोसर आ गया है, स्क्रीन रीडर है, बहुत सारी तकनीकी सुविधाएं जो है वो सुविधा आज मीडिया के माध्यम से सुविधाओं के माध्यम से हो रहा है। तो मूलभूत रूप से जो मेरी बात है वो बात मैं ये रखना चाहता हूं कि जितनी पर्याप्त सुविधाएं, हाल ही में आप देखिए कि 2 दिन पहले की ही बात है कि पैरा ओलंपिक में जितने भी विकलांग जन थे, इन जनों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाकर उसके साथ विचार विमर्श किया, और उन विचार विमर्श में इसका मूलभूत रूप से मुख्य धारा में प्रवेश कराने का उसका हेतु है। इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ही आभारजनक स्थिति प्रधानमंत्री के लिए हो सकती है कि साहित्य, समाज, मीडिया और सिनेमा इन पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है जो मुख्य रूप से इस धारा को, दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में प्रवेश कराने के लिए जितने भी कोशिश हो सकती है, उतनी कोशिश सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा भी हो सकती है। समय के साथ मैं जो अपनी बात इस समय ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहता था, दिव्यांग जनों के विमर्श की, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़े हुए जो विद्वजन है, उसके साथ मुझे ये बात को रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं रिसर्च कल्चर सोसाइटी बड़ौदा का आभारी रहूंगा और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हमीर भाई पी मकवाना जी। और आपने बहुत ही प्रासंगिक और संवेदनशील विषय चुना। और निश्चित रूप से अगर हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, चाहे वो दिव्यांग जन से संबंधित हो या समाज के किसी भी कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित हो, तो सरकारी योजनाओं के साथ साथ समाज की सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है, तभी उस दिशा में सकारात्मक सटीक परिवर्तन संभव है। बहुत बहुत आभार। और जो चौथा वक्ता है इस सत्र का, वो मैं स्वयं हूँ। और मैं आगरा कॉलेज आगरा में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा और प्राचीनतम, भारत का द्वितीय प्राचीनतम संस्थान है, उसमें हिंदी पढ़ाती हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो है स्त्री और मीडिया की भाषा। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और विचारों को प्रवाहित करने में, जन जन तक पहुंचाने में मीडिया एक प्रभावी भूमिका निभाता है। सभी को ज्ञात है कि जो आधुनिक विश्व सभ्यता का जब निर्माण हुआ था, तो उसमें प्रिंट मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी, और आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी पहुंच जन जन तक है। प्रिंट मीडिया की एक सीमा थी कि प्रिंट मीडिया की पहुंच केवल एक शिक्षित वर्ग तक थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सारी सीमाओं को तोड़कर हर जन तक पहुंच रहा है। और ये आज के मीडिया की सबसे बड़ी शक्ति है कि जो सूचनाएं हैं वो सर्वसुलभ हैं। यानी एक विश्व में एक सेकंड में जो कोई सूचना, कोई घटना घटित होती है, उसकी सूचना संपूर्ण विश्व में तत्काल मीडिया के द्वारा प्रेषित कर दी जाती है। और इसलिए आज के युग को सूचना का युग, मल्टीमीडिया का युग तक कहा जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं के ही संदर्भ में अपनी बात कहूंगी। तो 21वीं शताब्दी तक आते आते जो भारतीय महिलाएं हैं, उनके सम्मान और उनके उपलब्धियां और उनके स्थान में बहुत अंतर आया है। और आज महिलाओं की जो चिंताएं हैं, उपलब्धियां हैं और जो समस्याएं हैं,
वो मीडिया का विषय बन रही हैं। लेकिन अभी तक ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो वर्षनाओं के कारण दबे रहते थे, उनको भी मीडिया उभार रहा है। लेकिन अगर हम आज भी देखें तो ऐसा लगता है कि जो मीडिया है वो अभी भी पूरी तरह से लिंग भेद से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया है। जब आप देखते हैं कि विशेष रूप से जो विजुअल मीडिया है, दृश्य मीडिया है, वहां जब भी कोई चर्चा होती है, वो उद्योग नीति पर हो या विदेश नीति पर हो या युद्ध नीति पर हो, तो उसमें या तो महिलाएं होती नहीं है या उनकी संकेतात्मक उपस्थिति होती है। इसी प्रकार यदि कोई घरेलू मुद्दा है, आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं या फिर घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं, अपराध हैं, वहां पर महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है। इससे एक तथ्य समझ में आता है कि महिलाएं वहीं ज्यादा स्थान पाती हैं मीडिया पर, जहां पर पुरुष अपने आप को बोलने में सहज महसूस नहीं करते या बोलना नहीं चाहते या बोलना महत्वपूर्ण नहीं समझते। जबकि अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो शायद भारतीय लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसने एक मिसाल कायम की है। हम भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय मतलब महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, महिला स्पीकर, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि अमेरिका भी अभी इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वहां महिला एक राष्ट्रपति के रूप में आएगी। उसके बावजूद भी जो एक सामान्य धरातल पर जब ये भेदभाव दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से मीडिया की जवाबदेही बनती है, मीडिया से अपेक्षा भी की जाती है। और भाषा जो है, अगर हम देखें तो हमारी व्यवहारिक, मानसिक और भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगर हम आज देखते हैं मीडिया की स्थिति, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो पूंजी और बाजार की गिरफ्त में है। आप देखते हैं कि विज्ञापन में चाहे वो ट्रैक्टर हो, साबुन हो, सर्फ हो, यहाँ तक कि जो पुरुषों के द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्रियां हैं, उनके विज्ञापन में भी महिलाओं के दैहिक सौंदर्य को आधार बनाया जाता है, यानी कि महिलाओं को एक कमोडिटी, एक उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक प्रतीत होता है। लेकिन ये ऐसा होता है क्योंकि उससे टीआरपी बढ़ती है और विज्ञापन जुटाए जाते हैं किसी भी, चाहे वो धारावाहिक हो, चाहे वो समाचार हो, वहां हर जगह आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे जाएगी। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि जो टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, चाहे वो वारदात हो, सत्संग हो, जो महिलाओं के, जिसमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, हिंसक घटनाएं, उनमें बार बार पुनरावृत्ति की जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि मानो महिला बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराकर, और जो भाषा होती है और जो एक पिच होती है बोलने की, कि बहुत ही कहना चाहिए सनसनी और एक बहुत हिंसा, ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रतिरूप सामने आ गया उसका। तो उन घटनाओं को देखकर, चाहे वो सनसनी हो, चाहे वो वारदात हो, मैं तो प्रोग्राम के नाम भी ले रही हूँ यहाँ पर, उन कार्यक्रमों को देखकर ऐसा लगता है जैसे महिलाओं का कहीं ना कहीं आत्मिक बल कम करने की कोशिश की जा रही है। और महिला, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसने ये अपनी अभी एक डाटा भी प्रस्तुत किया कि पिछले अगस्त से लेके इस अगस्त तक जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं, उनमें राष्ट्रीय स्तर पर 46% की वृद्धि हुई है। तो ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। हालांकि अगर ये भी है कि जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं या हिंसक वारदातें होती हैं, वो मीडिया के कारण ही सबके सामने आती हैं, और कई बार विवेकशील और मीडिया कर्मी जो हैं वो महिलाओं को न्याय भी दिलाते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है कि जो निर्भया को जो न्याय मिला था, उसमें मीडिया की भूमिका बहुत ही सार्थक रही थी। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि जो टीवी पर धारावाहिक दिखाए जाते हैं और जो उनकी जो भाषा होती है वो भी बहुत
आपत्तिजनक होती है, ना केवल भाषा बल्कि जो वहां पे जो महिला किरदार होते हैं उनकी शारीरिक भाषा भी। आप देखते हैं कि जो हिंदी धारावाहिक में महिलाएं हैं वो दिन भर सजी संवरी बिल्कुल आभूषणों से लैस दिखाई देती हैं, और ये एक गलत महिलाओं की छवि को प्रस्तुत करता है। ये शारीरिक भाषा, अगर आप उनकी वाचिक भाषा देखें तो जो संवाद है उसमें भी ऐसा लगता है जैसे महिलाएं षड्यंत्र में शामिल हैं। और उसके अलावा जो शीर्षक भी होते हैं वो भी कई बार बहुत आपत्तिजनक होते हैं, जो महिलाओं की छवि को धूमिल करते हैं। जैसे एक शीर्षक आया था, सास बहू और साजिश। ये क्या है? क्या महिलाएं इस प्रकार की होती हैं? सामान्यतः महिलाएं बहुत संस्कारवान होती हैं, वो भाषा पर नियंत्रण करना जानती हैं, इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो महिलाओं की ऐसी छवि ना प्रस्तुत करे। ये धारावाहिक इस प्रकार से क्यों नहीं बनाए जाते कि हमारे यहाँ बहुत सारी, भारतीय समाज में तो एक मिसाल है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो गृहस्थी की गाड़ी को लगभग अकेले खींच रही हैं। इन किरदारों की इनको क्यों नहीं किरदार बनाया जाता? इनके शारीरिक मनोभावों की भाषा को, इनके संघर्ष को क्यों नहीं धारावाहिक की कथा का आधार बनाया जाता? एक बार कोशिश कीजिए, मीडिया से मेरा निवेदन, जरूर टीआरपी बढ़ेगी क्योंकि समाज बदल रहा है। ऐसे ही जब आप प्रिंट मीडिया पर देखें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, एक बात साफ दिखाई देती है कि अगर कोई फीचर है या डॉक्यूमेंट्री है या आलेख है तो वहां महिलाओं की रचनात्मकता, उनकी सक्रियता, उनकी सशक्त अभिव्यक्ति का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहां खबरें हैं या विज्ञापन है वहां एक सनसनी और एक चटकारे की ध्वनि आपको दिखाई देती है। जैसे पुरस्कार जब भी मिलते हैं, आपको मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब देखते होंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब एक वो बहुत बड़ा फिल्म जगत में पुरस्कार है माना जाता है, और मीडिया उसको अच्छा खासा कवरेज देता है। 2008 से लेके तो आज तक मैंने पूरा ट्रैक रखा है। हमेशा जो उसमें पुरस्कार मिलते हैं उसमें जो एक क्रम होता है वो पुरुष प्रधान होता है। आपने अभी भी देखा होगा जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, प्रिंट मीडिया पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये क्रम ऐसा ही था कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। कभी कभी तो महिलाओं का नाम ही गायब होता है। जैसे इससे पहले जो 66वां था उसमें था कि आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल ने बाजी मारी, महिला किरदार कहाँ गई? तो इस तरह की जो ये भाषा है इस पर निश्चित रूप से महिलाओं के द्वारा ही आपत्ति जताई जानी चाहिए, और जो मीडिया है उसको उसकी भूमिका के प्रति आगाह करना चाहिए। ऐसे ही महिला प्रधान या सरपंच बनाई जाती हैं और जब उनके कार्यों का लेखा जोखा मीडिया पर प्रस्तुत किया जाता है तो एक शब्द से मुझे बहुत आपत्ति है, रबर स्टैम्प। यानी कि जो महिला प्रधान है या महिला सरपंच है वो कुछ नहीं कर रही है और उसकी आड़ में उसका पति जो है वो सारे कार्यों को कार्य रूप दे रहा है। जबकि ऐसे ही एक जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय समाचार पत्र आता है उस पर एक बार किसी प्रधान के घूंघट पर बहुत निशाना साधा गया। मुझे बहुत कष्ट होता है, मतलब दुख होता है ऐसी खबरें देखकर, क्योंकि मैं खुद ऐसी बहुत सारी महिला प्रधानों को जानती हूँ जो बिल्कुल कहना चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में इतना ज्यादा काम कर रही हैं जमीन से जुड़कर, और केवल कार्य ही नहीं कर रही, उस कार्य को करने के लिए रबर स्टैम्प की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें अपने परिवार का, अपने पति के दबाव का सामना करना पड़ रहा है और वो उसका विरोध करके उन कार्यों को असली अमली जामा पहना रही है। तो क्या ऐसी महिला प्रधानों को नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए? मीडिया को ऐसे ही लोगों को, ऐसी ही महिलाओं को लाना चाहिए सामने जो रोल मॉडल बन सके। अगर हम देखते हैं उद्योग जगत की बात करते हैं, क्योंकि अब महिलाएं मजदूरी से लेकर और संस्थाओं के संचालन तक, उद्योग घरानों के संचालन तक अपनी क्षमता का अपना लोहा मनवा चुकी हैं।
और अगर आप देखें तो एक सकारात्मक परिवर्तन आपको मीडिया में दिखाई देगा कि मुकेश अंबानी के साथ इंदिरा नूई भी आ रही हैं या फागुनी नायर भी आ रही हैं। लेकिन जरूरत है कि अगर बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी हुई महिला कोई सशक्त कदम उठाती है तो उसको मीडिया एक बहुत जोरदार आवाज में उठाए, क्योंकि ऐसी महिला जो है वो अनेक महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती है। उसे देखकर बहुत सारी महिलाएं आगे कदम बढ़ा सकती हैं और ऐसी महिलाओं को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी हेडलाइन चाहिए और समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ। जैसे अभी एक गोरखपुर की घटना थी कि बाढ़ आ गई, पानी भर गया और जो संध्या आरोपी एक बालिका है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो खुद नाव चलाकर स्कूल जा रही है। तो ऐसे ही उदाहरण जो है वो मीडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखते हैं विज्ञापन की भाषा तो आपको लगेगा कि ये जो गोरेपन की क्रीम पाउडर ये सब क्या है, ये भाषा का छलावा है, धोखा है। जितने भी ये क्रीम पाउडर के एडवर्टीजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उसे देखकर आपको लगेगा कि एक हफ्ते तक कोई उसका प्रयोग करता है और फिर उपयोगकर्ता का भविष्य ही संवर जाता है, उज्जवल हो जाता है। और जबकि आपको नहीं लगता कि क्या मीडिया ऐसा करके नस्ल भेद को बढ़ावा दे रहा है, जबकि मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाए, समानता समाज में लाना हर स्तर पर ये मीडिया की जिम्मेदारी है। आज भी जब हम विज्ञापन देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा विज्ञापन जगत, भारतीय विज्ञापन जगत महिलाओं के प्रति रूढ़िगत धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाया। आज भी ऐसा लगता है कि घरेलू कामों की जो सारी जिम्मेदारी है वो महिलाओं की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचा मुकाम क्यों ना प्राप्त कर चुकी हूँ। अब बहुत जरूरत है सकारात्मक परिवर्तन की और ये परिवर्तन आरंभ हो चुका है। जैसे अब आप बीबा के जो का जो उदाहरण, एक विज्ञापन आता है जिसमें कि लड़का जो है वो लड़की वालों से 10 दिन का समय मांगता है खाना बनाना सीखने के लिए, या फिर एरियल का जो सर्फ है शेयर द लोड, जिसमें एक पिता देखता है कि उसकी जो बेटी है वो कैसे बिल्कुल दोहरी जिम्मेदारी उठाते घर के बाहर और घर के भीतर बिल्कुल टूट रही है, तो वो अपनी पत्नी को ये के आगे हाथ बढ़ाता है कि वो उसके कपड़े धोने में मदद करेगा। तो इस तरह के विज्ञापन की शुरुआत हो चुकी है। और इसमें एक विज्ञापन जो काफी पहले आया था वैसे, डाबर वाटिका का ब्रेव एंड ब्यूटीफुल तेल का उदाहरण है ये, विज्ञापन है ये। और सामान्यतः जब किसी भी तेल का विज्ञापन आता है तो उसके लिए बहुत घने, मुलायम, चमकदार और चमकीले ऐसे बालों को प्रस्तुत किया जाता है। ये जो इनके ब्रेव एंड ब्यूटीफुल जो सीरीज है विज्ञापन की, उसमें है वो जो विज्ञापन है वो उन महिलाओं को सलाम करता है जो कैंसर रोग के कारण कीमोथेरेपी में अपने बाल गंवा चुकी हैं और अभी भी जिंदगी को जी रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और हार नहीं मान रही हैं। और इसमें जो पृष्ठभूमि में एक गीत भी चलता है कि क्या है कि उनकी तुम्हारी जो जिंदगी है वो मोती में छिपा हुआ, सीपी में छिपा हुआ मोती है। और ये जो उदाहरण है ये एक विज्ञापन का, ये सचमुच ऐसा उदाहरण है जिसकी हमारे समाज को बहुत ही जरूरत है। और जो महिलाओं से संबंधित रूढ़िगत धारणाएं हैं इन्हें तोड़ने में ये निश्चित रूप से मदद करेगा। ऐसी जो निर्मा एडवांस का एक अभी आ रहा है विज्ञापन जिसमें ऋतिक रोशन नाचते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां एक सार्थक बिल्कुल संदेश जाता है कि पुरुष जो है वो भी कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं और उन्हें भी बहुत मजा आ सकता है, वो भी आनंद उठा सकते हैं। अब ये बहुत सर मैं पूछना चाहूंगी पटेल साहब से कि क्या समय में स्क्रीन शेयर करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा सकती हूँ? हाँ जी। थैंक यू सर।
एड कैंपेन उसमें इस विज्ञापन को चौथा स्थान मिला था। इतने सकारात्मक परिवर्तन हमारे विज्ञापन जगत में अब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मार्च में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी और यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है कि जो भारतीय मीडिया है और भारतीय विज्ञापन जगत है उसमें महिलाओं को बोलने का और स्क्रीन पर जो दिखने का टाइम है वो बेंचमार्क से ज्यादा है, मतलब पुरुषों की तुलना में ज्यादा है और विश्व में भी अच्छा खासा समय यहाँ उन्हें दिया जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय विज्ञापन जगत जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनसे मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से भाषा और दृश्य दोनों स्तर पर इन रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुक्ति की बहुत आवश्यकता है और इस क्षेत्र में जो मीडिया जगत में महिलाएं हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और अब भारतीय मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहुत सी भारतीय महिलाएं जो है वो प्रवेश कर चुकी हैं और वो एक संघर्ष करके ऊंचे पदों पर भी पहुंची हैं। हालांकि जो गीता श्री ने एक उपन्यास लिखा है वाया मीडिया, जिसमें वो ये बताती है कि जो मीडिया जगत में महिलाएं काम कर रही हैं उनके संघर्ष की अपनी कहानी है। आपने समाचार भी पढ़े होंगे पिछले दिनों की, जो मीडिया जगत में महिलाएं कार्य कर रही थी, उन्होंने अपने संस्थानों के लोगों पर ही कहना चाहिए यौन शोषण के आरोप भी लगाए, लेकिन फिर भी महिलाओं ने एक बहुत ऊंचा मुकाम मीडिया जगत में प्राप्त किया है। और ऐसी महिलाएं जो हैं, अगर अब उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं का सकारात्मक रूप भाषा के स्तर पर, शारीरिक भाषा के स्तर पर और दृश्य रूप में दिखाई दे। और अगर वो ये कदम उठाती हैं तो उनके साथ बहुत सारी संस्थाएं जो उनका साथ देंगी, जैसे कि मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, प्रेस परिषद है, देश की आधी आबादी तो है ही, और इस भारतीय समाज के संवेदनशील परिपक्व पुरुष भी उनका साथ देंगे। तो निश्चित रूप से हम जब एक सब मिलकर एक सार्थक दिशा में कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से जो मीडिया है उसकी जवाबदेही और उसका जो दायित्व है वो महिलाओं के प्रति निश्चित रूप से बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं समय की सीमा का ध्यान रख रही हूँ। धन्यवाद। और अब आप सभी आमंत्रित हैं, प्रतिभागी भी, विद्वत समुदाय भी, प्रश्नों को, समस्याओं को और अपनी अपनी टिप्पणियों के साथ मीटिंग में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको कोई प्रश्न हो, ये हमारा जो सेशन रहा कीनोट सेशन 2, उसके दौरान जो स्पीच दिया गया सभी वक्ताओं के द्वारा, तो उसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो आप आमंत्रित है यहाँ पर पूछने के लिए। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ सकते हैं। आज का यह सत्र यहीं समाप्त होता है, कीनोट सेशन 2। और ये जो द्वितीय सत्र था, हम इसके जो वक्ता हैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर चित्रा, कैप्टन डॉक्टर मोहसिन खान, डॉक्टर हमीर भाई पी मकवाना जी, और मेरा आभार डॉक्टर पटेल को, जो बहुत ही सार्थक विषय पर हमेशा कॉन्फ्रेंस और
सेमिनार वर्कशॉप आयोजित करते रहते हैं और उनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मैं सभी प्रतिभागियों की भी आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पर बहुत गंभीरता के साथ इस चर्चा को सुना और प्रश्न भी चाहे एक ही आया लेकिन आया अवश्य। तो यह सत्र ये नहीं कह सकते कि इसमें चर्चा नहीं हुई, चर्चाहीन रहा। तो बधाई। और जो लोग इसका टेक्निकल या तकनीकी पक्ष से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत स्मूथली पूरा सत्र चला, कहीं पर भी कोई तकनीकी व्यवधान नहीं आया। एक बार पुनः सभी को आभार, धन्यवाद।